Good morning, children. This is class 4, sorry, class 3, science. Okay, and today I am just taking some part of the um, chapter which we were doing earlier, that was our body systems, chapter 2. Okay, in this chapter we were studying about different uh, systems of our body. Okay, so we had studied about the in the earlier pages we had studied about the skeletal system, then muscular system, then nervous system, and today I am going to start from number 4, that is circulatory system. Okay, that is on page number 22 in this chapter, page 22 in your book, class 3. Okay, now you see what we will see what all is there in the circulatory system. सर्कुलेशन यू मीन्स कि किसी चीज़ का चलना, सर्कुलेशन होना. स्पेशली इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी. वी विल सी हाउ मैनी पार्ट्स टेक प्लेस इन इट and how it works, this system works, and how important it is. So all this we will study now. The circulatory system. The circulatory system is composed of heart, blood, and blood vessels. Mainly three parts take place in this: heart, then blood, and blood vessels. Vessels means all the nerves, you can say. All the vessel means वी विल नॉट से नर्व्स बट वी विल से वेसल मीन्स जैसे कि नसें जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में. यू मस्ट नो. एंड इफ़ यू सी योर हैंड, स्पेशली हैंड ऑफ एन एनी एल्डरली पर्सन, यू विल सी कि आपको उसके अंदर नस दिखाई देगी, स्पेशली इन द ओल्ड पीपल. तो दिस इज़ वॉट दे आर, ब्लड वेसल्स. ओके, एंड दे कैरी blood from one organ to another organ. Okay, so blood flows in blood vessels. Yes, this is what I told you right now कि blood जो है वो इन blood vessels में रन करता है और फ्लो करता है, माने वो पूरे समय चलता रहता है. ठीक है, इट डजंट स्टॉप. इट कैरीज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ और डाइजेस्टेड फूड से जो ग्लूकोज बनता है उसको सब बॉडीज के दूसरे पार्ट्स में ले जाता है, सो दैट दोज पार्ट ऑफ द एनर्जी बॉडी गेट एनर्जी टू वर्क. एंड एडल्ट हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 टाइम्स इन अ मिनट. और एक एडल्ट पर्सन का जो हार्ट होता है वो 70 to 80 टाइम्स बीटिंग करता है. ठीक है, हार्ट बीट जो होती है 70 to 80% होती है. दैट इज़ नॉर्मल. इट मीन्स the heart of the person is working normally. Okay, so this is yes, you can see this is heart. And veins को नसें बोलते हैं, नस. एंड arteries, veins and hearts. Okay, you can see the arteries are in blue color and veins are in red color. ठीक है, ये 2 टाइप की हमारी बॉडी में होती हैं, जो कि आर्टरीज आर द मेन हु कैरी द ब्लड. ओके, ऑल राइट. फ्रॉम द हार्ट स्पेशली, व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड, द ब्लड इज कैरीड थ्रू द आर्टरीज in all parts of the body. Okay, it supplies blood to the parts of the body, especially arteries. Okay, now number 2, respiratory system. Respiratory system, we will see now. This is the photograph of a respiratory system. We can see we know that we all inhale and exhale oxygen, है ना. हम लोग आप नाक से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये पता है आपको. So the respiratory system, that is number 5. When we breathe in, the air goes inside our body through our lungs, through our nose, and through windpipe. It goes inside our nose, inside our lungs. Sorry. When we, again I am reading this line. When we breathe in, the air goes inside our body through our lungs. जो एयर हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, वो हमारी नाक के द्वारा हमारे लंग्स में जाती है. This air is used to oxidize the food and release energy. और
वो हमारे जो एयर है या ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी हमने जो ऐसा कुछ भी जो होता है जो कि विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर बॉडी, और वी कैन से whatever we inhale by mistake or whatever goes inside our body which is not suitable, तो उसको ठीक है उसको और again I will read this line, this air is used to oxidize the food and release energy। ये जो एयर हमारी बॉडी में जाती है ये फूड को जो हम खाते हैं और जो लंग्स के द्वारा हमारे सांस लेते हैं वो उसको अच्छा करती है, साफ़ करती है और रिलीज़ करती है एनर्जी को। एनर्जी रिलीज इज़ यूज फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़, और एनर्जी जो है वो फिर हमारे व्हेन वी गेट द एनर्जी वी आर एबल टू डू वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। ओके, yes, now we can go to the third part, third system. Here we can see, have a look at this on page number 23. Why should we breathe through nose only? This is the question, why should we breathe, यानी हमें सांस सिर्फ केवल नाक से क्यों लेनी चाहिए, हमें मुंह से क्यों नहीं सांस ले सकते। ठीक है, our nose contains a small hair which act as a filter for dust and other particles. तो it is necessary that we should take the air or oxygen through our nose, because our nose has small hair inside our nose, और जब भी whenever any dust or anything which is not suitable for, which makes the air dirty, so these hair which are inside our nose, these dust particles we can say stick to the hair and they don't go inside. ओके, हैंस ओनली क्लीन एयर एंटर्स आवर लंग्स, और ये एक तरह से फिल्टरिंग का काम करते हैं कि वो उनको वहीं रोक लेते हैं और सिर्फ क्लीन एयर को अंदर भेजते हैं। ठीक है, इन माउथ देयर आर नो हेयर एंड द डस्ट पार्टिकल्स डायरेक्टली एंटर इन आवर बॉडी एंड कॉज प्रॉब्लम। और अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो भी बिकॉज देयर आर नो हेयर इन साइड आवर माउथ, सो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर कॉज प्रॉब्लम and we become sick. Okay, now we will study one more system, the digestive system. This is number 6, digestive system. This system helps in digestion of food. This is connected with the food and its digestion. जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए how useful it is, we have to see. The food we eat passes through the food pipe and reaches the stomach and then enters the intestines. सबसे पहले जो हम फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी से, हमारे मुंह से, after chewing and grinding it goes in the stomach. That is a hollow muscular bag like structure. I can show you here in the system. This is the stomach. Okay, तो यहाँ से फूड पाइप से आया और यहाँ चला गया। ठीक है, देन फिर क्या होता है, here the complex food is broken down into the simpler form and this is called digestion. और जो भी वहाँ पे एक तरह से उसकी जैसे कि जो उसको डाइजेशन का काम करता है स्टमक स्पेशली, एंड इट टेक्स सम टाइम, फ्यू आवर्स वी कैन से, टू डाइजेस्ट द फूड, बिकॉज जो भी हमारे वट एवर वी ईट इट गोज इनसाइड आवर बॉडी। तो स्टमक इज़ द मेन ऑर्गन वी कैन से हु डज लॉट ऑफ लेबर टू डाइजेस्ट द फूड, मीन्स उसको वो बिल्कुल जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि दही मथा जाता है या वो क्रीम मथी जाती है बटर बनाने के लिए, तो उस तरह से मथने का काम जो है उसमें से अलग अलग पानी अलग करना और मेन पार्टिकल जो है वो अलग करने के लिए का काम स्टमक करता है। ठीक है, इट सेपरेट्स द मेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम the food which we eat. Okay, the unwanted food is passed out of the body through the opening called anus, और उसके anus, उसके बाद ये यहाँ से
स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, देन इट गोज़ फ्रॉम स्टमक to the large intestine and it is thrown out of the body with that an opening that is called anus. Okay, so this is the photograph of the digestive system, children. I can tell you कि हमने मुंह से खाना खाया, फूड जो है हम यहाँ से लिया, देन ऑसोफेगस इज़ द नेम ऑफ द फूड पाइप. फूड पाइप का ही दूसरा नाम ये एक्चुअली ये बायोलॉजिकल नेम है. यू कैन सी सिंपल फूड पाइप. फिर यहाँ से ये इधर थ्रू स्टमक में आया और लिवर जो है इसमें थोड़ा और जूसेस जो है वो देता है, सेक्रेट करता है, वो भी उस खाने में मिल जाते हैं. वन मोर ऑर्गन इज़ देयर जो कि यहाँ नहीं लिखा है, दैट इज़ पेनक्रियाज. वो भी अपना जूसेस सेक्रेट करता है जब खाना आता है पेट में, तो फिर वो भी डाइजेशन में मदद करता है. दैन इट पासिस टू द लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो लार्ज इंटेस्टाइन ये बनी हुई है पूरा, not large intestine, तो स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट, ये पूरा है. दे आर वेरी लॉन्ग और ऑलमोस्ट 20 फीट लॉन्ग, बट ये इस तरह से कॉइल्ड पोजीशन में होती है, गोल गोल घूमी होती है, तो वो पेट के अंदर रहती है. इट इज़ इंटेलिजेंट, गुच्छा जैसे होता है, बंच के रूप में होती है. और उसके बाद दीज स्मॉल इंटेस्टाइन पास द डाइजेस्टेड फूड टू द लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ से यहाँ आ जाता है एंड देन इट after passing through this large intestine it comes out through this part which is an opening of a human body, that is called anus, and we pass the undigested roughage of the food through this. ठीक है. So alright, I think it is enough for today, children, and we will take the rest of the part in the next week, next video. Okay, thank you.